Hi everyone, my name is Twinkle and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be covering up a very requested topic, which is how to become a ground staff in especially an airline like Indigo. So there has been many requests from all of you all for me to cover up also the role of ground staff, on how to become, how to apply, what are the eligibility criteria, what is the salary structure, benefits like, what are the interview rounds, and basically details about this role as well apart from becoming a cabin crew. So in this video, this is what exactly I'm going to do. So if you're interested to become a ground staff, a customer service executive, whether it's a ramp staff or a security staff in Indigo, then this video is for you. And if you haven't subscribed to my channel yet, then hit the subscribe button, like this video and share this video with all those people who wish to become a ground staff or a customer service executive in an airline. Let's begin. So I'm going to be leaving a link in the description box which will direct you to this page. If you're someone who wants to apply in Indigo, there is an interview which is going on in Delhi currently, and there are many other roles also, but a specific department, for example customer service agent or ramp agent, you can directly walk up to the location, the venue, on the 22nd of March 2023 between 8 to 10 a.m. This is for a smooth process, so you can register yourself with all your documents, and I'm going to give you the list of documents also that are required. The interview venue is Hyatt Centric, Janakpuri. This is New Delhi. This is your address for walk-in interview. The mandatory documents to carry, here it's clearly written both original and photocopy, is your CV or resume, PAN card, Aadhaar card with address, passport with address, and educational documents. They require 10th, 12th and graduation mark sheet, certificate and all other further qualifications that you've done apart from this that you want to show. Experience letter and salary details in case of an experienced candidate is also required. The eligibility criteria, number one thing is a graduate from a recognized university. आप graduate होने चाहिए. They are not accepting anyone who is 12th pass only. You have to have a graduate degree, and अगर आपका result awaited है, if your result awaiting or you have a pending exam to give, then also you're not eligible. So you should have a degree, a final degree in your hand to show to them. Has to be by a recognized board or university which is recognized, determined by Indigo only. If at all the Indigo feels that whatever you are showing or whatever your degree is from the whatever university, the qualifications are not up to the mark, even for that matter any other documents are not up to the mark, they have a right to cancel, revoke your offer letter also. Desired skill 2 से 3 है. Good communication skills, fluency, adaptability, flexibility, because in all these roles when I tell you the kind of responsibilities that you have to fulfill, you will feel yes, this is a very demanding job and there are clear-cut skills that are required for this role. So customer service aptitude, open to working in rotational shifts, able to work under pressure. So two things that are absolutely a lot in your work is, first, number one, a lot of pressure because अलग-अलग departments रहते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, फ्लाइट्स क्लोज करनी होती हैं, पैसेंजर्स के लास्ट टाइम इश्यूज होते हैं, हर तरफ से डिपार्टमेंट्स के कॉल्स आ रहे होते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है. सेकंड, रोटेशनल शिफ्ट्स रहती हैं कि आज आप रात को ड्यूटी कर रहे हैं, कल आप दिन में ड्यूटी कर रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम. सो आपको दोनों ही चीज़ों से, ये दोनों ही स्किल्स अपने CV में हाईलाइट ज़रूर करनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ प्रेफर्ड. नो विजिबल टैटू मार्क्स और बॉडी आर्ट. Interview candidates can reapply after 6 months. So if you do not make in any interviews, then you have a cooling period. If you don't know about the cooling period, then if you have not made it into the final interview, अगर आप किसी भी एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू, यूजुअली अगर आप फाइनल इंटरव्यू फेल करते हैं, जो फाइनल राउंड होता है, उसके बाद आपको 3 to 6 months के लिए वेट करना होता है, कूलिंग पीरियड. दिस पीरियड इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू इम्प्रूव, ताकि आप अपने अंदर जो कमियां हैं वो पूरी कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और एक दोबारा से इट्स नॉट लाइक आप सेकेंड डे या सेकेंड वीक जाके इंटरव्यू दे सके. For a fair chance and also giving you an opportunity to improve, 6 months का cooling period even Indigo is telling you to follow. Candidates appearing for interview should be well spoken, well groomed as per the aviation standard. Well spoken, again, good communication skills, यानी कि fluency ही नहीं, but you should be able to understand and communicate well with other people. Apart from that, बहुत ही अच्छी grooming होनी चाहिए, very well groomed, because passenger facing profile है and at all times आप airline को represent कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए. Now, mandatory requirements पे आ जाते हैं for customer service. जो मैंने अभी बात करी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन.
रैम्प के लिए अडेप्टेबल टू ऑल वेदर्स, प्लेस ऑफ वर्क कैन बी एदर टर्मिनल और एप्रन। टर्मिनल यानी एयरपोर्ट के अंदर अंदर भी हो सकती है, और आपने काफ़ी बार देखा होगा एक हरे रंग की जैकेट पहन के बहुत सारा स्टाफ एयरक्राफ्ट के आसपास घूम रहा होता है, लगेज के आसपास या फिर पैसेंजर बसेस के आसपास जो बहुत सारा स्टाफ एक वॉकी टॉकी लेके घूम रहा होता है, उसे एप्रन एरिया कहते हैं। वहाँ पर भी आपको एक पोजीशन मिल सकती है, तो वो रैम्प स्टाफ कहा जाता है। इधर टर्मिनल पे भी आपको काम करना पड़ सकता है, यानी कि बिल्डिंग के अंदर, और जब ये कहते हैं कि अडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशंस, इसका मतलब है कि बाहर भी आप काम करने के लिए ओके होने चाहिए। प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट है वेल वर्स्ड इन कस्टमर डीलिंग, तो आपका अगर कोई भी बैकग्राउंड रहा है, वेदर पेड एक्सपीरियंस, अनपेड एक्सपीरियंस, वेयर यू हैव डेल्ट विद कस्टमर्स ऑन अ डेली बेसिस, और यूजुअली अगर आपने किया है तो दैट इज अ प्रेफरेंस फॉर देम। एंड फॉर रैम्प स्टाफ लोड एंड ट्रिम लाइसेंस रहता है, और एक वो होगा तो प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड 12th का साइंस बैकग्राउंड है तो भी एक प्रेफरेंस दी जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ क्या हैं आपकी। सो रिजर्वेशन, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो होती हैं कि असिस्ट करना कस्टमर्स को थ्रू आउट ऑल द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू अराइवल, डिपार्चर, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो रिजर्वेशंस और टिकटिंग में मेकिंग रिजर्वेशंस, काउंटर पे टिकट सेल करना, कैश कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाना, कस्टमर क्वेरीज को आंसर करना, प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग्स देखना, डिपार्चर के समय चेक इन काउंटर सेटअप करना, स्क्रीन करना बैगेज को, कितना वेट है, कितना सही है नहीं, एक सही फ्लाइट पे उसे टैग करना, क्वालिटी ऑफ चेक इन प्रोसीजर मेंटेन करना, कोई इश्यूज़ ना हो वहाँ पे, स्मूथ प्रोसीजर रहे, कस्टमर्स को असिस्ट करना उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, जैसे कोई स्पेशल सीट या फिर कोई प्रैम की अवेलेबिलिटी चाहिए या व्हील चेयर रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें भी अकोमोडेट करना। अराइवल के लिए भी सेम, कस्टमर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट अकोमोडेट करना, कोई मिस हैंडल्ड बैगेज है या डैमेज बैगेज है उसको अकोमोडेट करना, सारी ही रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स उसके लिए बनाना, बैगेज वेंडर से डैमेज बैग्स के लिए कोऑर्डिनेट करना, जितना भी फॉलो अप लेना है स्टेशन से रिगार्डिंग लॉस्ट बैगेज, ये सब काम भी करना, और पोस्ट फ्लाइट डिपार्चर आप फिल करना सारे नेसेसरी फ्लाइट पेपर्स। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको मैनेजमेंट ने दी है उसे टाइम टू टाइम कंप्लीट करना, डिपार्टमेंट से अकाउंटेबल रहना, यानी कि बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। मैं पर्सनली फील करती हूँ ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब है काफ़ी डिमांडिंग रहती है। और कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेसिकली लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप एक क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट यू नो व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग एज अ रैम्प स्टाफ या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। आपको पता रहेगा कि आपका रोल क्या है। तो अगर आपको ये इंटरेस्ट करता है एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई, देयर इज़ अ लॉगिन बटन, यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई, एंड यहाँ पर आपको साइन अप करना है अगर अकाउंट नहीं है। सो जल्दी से आपको मैं लॉगिन करके भी दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली फॉलो एंड फिल अप द फॉर्म। So let's quickly log in here. You need to fill up your email ID, password, and then quickly sign up. जैसे ही you will sign up, you'll see this will take you to this verify email. वेरीफाई करें अपने जीमेल अकाउंट में जाके एंड देन प्रेस द लॉगिन, जस्ट एज यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सेम फॉलो करना है। आप अपना ईमेल डाल के आप अपना पासवर्ड डालें और उसके बाद आप फटाफट से उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको काफ़ी सारी पोजीशंस दिखाई देंगी जो भी करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो जो भी आपको वैकेंसी में अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट करके आपको ये एक फॉर्म आएगा, आपको वो फॉर्म पे जाकर यू हैव टू फिल दिस बेसिक फॉर्म। बहुत ही बेसिक है, मैंने क्विकली फास्ट फॉरवर्ड में ये फिल कर दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। यू कैन ऑल्सो अपलोड योर रेज्यूमे, बेसिक डिटेल्स, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आप कहाँ रहते हैं, योर एकेडमिक डिटेल्स, ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है सो यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर करंटली वर्किंग और नॉट, लास्ट वर्किंग डेट, आप किसी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से तो नहीं है, ये सारी ही डिटेल्स आपको भरनी है। देखिए कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आप नहीं भरेंगे तो रेड दिखाएगा। सो वंस यू फिल इट completely, once you fill all the mandatory required fields, education, academic details, जैसे मैं भर रही हूँ जितनी भी required fields हैं यहाँ पे, start date to end date of your degree details, everything, वर्क एक्सपीरियंस भी अगर नहीं है तो नील करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो यू सी ईजिली आपका योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड का इस तरह से स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। वंस यू डू दिस, आप यू कैन गो टू योर जीमेल अकाउंट, आपको वहाँ पे एक ईमेल भी आया होगा विच विल सक्सेसफुली गिव यू दिस एप्लीकेशन आईडी, और आप इस पर लॉगिन करके अपना प्रोफाइल वेरीफाइड पे भी देख सकते हैं। नाउ वंस दिस स्टेप इज़ डन
and your CV is selected, your profile is If your shortlisted. CV is selected, if your profile is worth, then they will call you for the number one round, which is CV round. CV round में क्या होता है? There are around 300 to 400 candidates. अभी depending upon the place, it can be more or less also. But what happens is HR के सामने there's a panel interview, and the ratio is the HR team, and they will have around 10 candidates or 12 candidates in front of them. That is the first stage of screening, where they will number one screen your resume. Number two, they will check your grooming and attire, and also obviously how you walk, how you talk, your body language, all of that is also checked. Number three, they will ask you question to check your basic fluency, right? So questions which are basic in nature, like why do you want to become a ground staff, or why do you want to join this airline, or tell me something about yourself, is very common. These are the questions that are being asked. Apart from this, once you clear this stage, they usually highlight that people who are going to be interviewing for customer service, this is what they're looking for, or ramp, this is what they're looking for. ये काफ़ी easy रहता है and not as difficult as compared to cabin crew jobs. और इससे पहले यहाँ पे एक चेक भी होता है जहाँ पे वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको दी वो सारी आपके पास होनी चाहिए, वो भी एक चेक रहता है, so that they also don't end up wasting your time and vice versa. So जब आपसे questions पूछे जाएं, why should we hire you or why Indigo, one tip would be कि try to make it like a conversation. In any case, your interview should not sound like you've mucked up the answers and you're trying to give an answer. आपका माइंडसेट होना चाहिए, एक प्रेपरेशन रहती है. हाउएवर इट शुड ऑलवेज बी लाइक अ कॉन्वर्सेशन. ऐसा नहीं कि आप आंसर भूल जाए तो आप रिकॉल करने लगे हैं, बिकॉज दैट शोज़ कि आप सिर्फ रटा रटाया स्टफ में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑन द स्पॉट कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी तो वो आपसे नहीं हो पाएगा. सो ट्राई टू मेक इट एज मच एज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. बात करें, कंफर्टेबल रहें एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. और ये तब होगा जब आपने खुद अपने आंसर्स रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर किए होंगे, आप समझ के आंसर्स बनाए होंगे, ना कि अपने रट्टा लगाया होगा या मगिंग अप करी होगी. सो एज आई मैंशन, जैसे ही आप बात कर रहे होंगे आपका ग्रूमिंग चेक एज वेल एज ए क्विक डॉक्यूमेंट चेक एक्सेट्रा भी हो जाता है. सेकेंड राउंड में 10 to 5 ऑलरेडी फर्स्ट स्क्रीनिंग इज डन, एंड देन इट्स लाइक वन पैनल ऑफ HR एंड देन यू आर around 5 to 6 candidates. एक और क्वेश्चन पूछा जाता है. It could be again any of these basic questions only. The questions are not very difficult. However, if you're an experienced person, they can ask you how will you deal with a difficult customer, or have you ever dealt with a difficult customer, but that's for an experienced person. और अगर आप experienced है तो आपको ये answers आने चाहिए. Mind you, ये काफ़ी लंबा चल सकता है because anyway they ask you कि 8 AM to 6 PM का टाइम ये लेंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड दे नीड टू स्पीक टू ईच पर्सन. इट कैन ऑल्सो गो अप टू 8 or 9 PM. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द डे. उसी दिन अनाउंसमेंट हो जाती है जो पीपल सिलेक्टेड हैं, और उन्हें बता दिया जाएगा. यूजुअली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एज पर रिक्वायरमेंट ईमेल विद इन अ वीक और सो आ जाता है, लेकिन रैम्प स्टाफ और सिक्योरिटी एज पर रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए टाइम लगता है. फॉर एज मच एज 3 to 4 months भी लग सकते हैं. तो ये सारी अनाउंसमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी ही टीम दे देती है. सो इट्स अ लॉट क्लियर. इसके बाद का स्टेप होता है, सिर्फ 2 ही राउंड्स होते हैं. इसके बाद का स्टेप होता है वो आपको एक ईमेल भेजते हैं, और ईमेल कुछ ऐसा दिखता है. तो इस ईमेल में दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड सम ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स. फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली वो आस्क करेंगे. और डॉक्यूमेंट्स होंगे 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th क्लास का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री, फाइनल डिग्री, या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही क्लियरली लिखी हुई हैं. फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस, चाहे वो फ्रॉम एविएशन हो या नॉन एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग हो, दोनों के लिए ही अलग कॉलम है. सो आप वट एवर यू कैटेगरी यू बिलोंग टू वो पढ़ लें. आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आपका पासपोर्ट इशूड 2018 से बाद हुआ है, इन दिस केस इफ इट्स डन बिफोर, देन अ वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. ये जिसमें आपका एक सुपरिटेंडेंट होता है पुलिस का, जो सील और आपका टेन्योर ऑफ स्टे और आपका एड्रेस वगैरह पे एक वेरिफिकेशन करने आएगा. अगर आपका 2018 के बाद हुआ देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एक कैंसिल चेक ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक या फर्स्ट पेज ऑफ योर पासबुक भी चाहिए होगा. और अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपके भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं. यू कैन गो अहेड एंड हैव अ लुक. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिलो मैंशन डॉक्यूमेंट्स टू बी शेयर्ड आफ्टर ऑफर लेटर फ्रॉम इंडिगो. अगर आपको इंडिगो से ऑफर लेटर मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स चेक और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होती है उसके बाद, तो आपको एक 3 चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं. इफ़ यू आर करंटली वर्किंग, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम लास्ट एम्प्लॉयर चाहिए होगा. लास्ट वर्किंग डे उस पर मैंशन होना चाहिए क्लियरली.
एक्सपीरियंस लेटर्स ऑफ ऑन नॉन एविएशन रिलेटेड कंपनीज, यानी कि अगर आप एक एयरलाइन में नहीं भी थे तो भी, अगर आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस दिखाया तो एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा उसका। और अगर आप करंटली नॉट वर्किंग हैं तो एक्सपीरियंस लेटर और लीविंग लेटर ऑफ ऑल प्रीवियस कंपनी, जहां भी आपने पहले काम किया है, अगर आप करंटली काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी पहले काम की कंपनी का भी चाहिए होगा। एयरपोर्ट एंट्री पास चाहिए होगा, अगर उसका सरेंडर कर दिया है तो सरेंडर करने का एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी होती है, इशूड एंड स्टैम्प्ड एंड साइन बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहिए होगा। बट ये उन्हीं के लिए जो एक एविएशन एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से हैं, जो करंटली एयरलाइन में रह चुके हैं। After this process also, once your documents are checked, there is also a background check along with medicals. So also medicals are taken care by Indigo team. You don't have to pay a single penny. It is taken care by them, and medicals are very easy. It's just your color blindness test, your vision test and your hearing test. That's all, nothing major apart from this. And once you clear your medicals, there is a background verification where you are provided by with an employee ID by the company. कुछ documents रहते हैं, कुछ personal details और educational qualifications के साथ एक verification होता है, वो process भी आपको company assist करती है. That also needs to be done. After all this process, if everything goes well, then the company sends you another email with the joining date, और वो email कुछ ऐसा दिखता है. So इस email पे आपसे पूछा जाएगा acceptance of offer yes या no, और अगर आपको सारी ही डिटेल्स जिसमें जैसे सैलरी एनेक्चर वगैरह दिया रहता है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, यू कैन सेंड देम येस एंड क्विकली यू विल बी सेंट विथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग। आई नो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सैलरी क्या है। सो इफ़ यू वांट टू नो द सैलरी, बेनिफिट्स एंड रेम्यूनरेशन टोटल क्या रहता है फॉर अ ग्राउंड स्टाफ इन इंडिगो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेम चीज़ लेकर आऊँगी। लेट मी नो अगर आपको सैलरी जानने में इंटरेस्ट है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है आपका थर्ड ईमेल, जिसके अंदर आपको एक कंग्रेचुलेशंस ईमेल जाता है, जिसमें आपकी डेट लिखी होती है, ज्वाइनिंग डेट, जो कि गुड़गांव में रहती है, 21 मार्च है इस केस में, ये एक एग्जाम्पल है, और आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जल्दी से जल्दी देना होता है। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं जो आपको डे ऑफ ज्वाइनिंग पे कैरी करने हैं, और सेट्स ऑफ 4 में फोटोकॉपीज में बहुत ही क्लियरली सब कुछ लिखा रहता है, कैरी करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ ग्राउंड स्टाफ, फ्रॉम एलिजिबिलिटी to interview, to how to log in, to what are the rounds and process, including emails and offer letter कैसे रहता है। I hope आपको एक छोटा आइडिया पता लग गया है कि ये राउंड्स कैसे होते हैं, एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी इन टर्म्स ऑफ अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ जॉब करना चाहते हैं इंडिगो में। एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ़ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करें इसे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।